बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसके बाद आप जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा लाइफ टाइम भूलेगा नहीं उस चीज़ को। तो यही मेन मकसद था कि इस जो साइंस मैथ है इनको हम बाहर लेके आएँ और बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे। ऐसे ही हम आर्ट के साथ जोड़ते हैं क्योंकि बच्चे का जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो कोशिश रहती है कि उसी सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, सो दैट बच्चा जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसके साथ साथ मैथ साइंस को जब पढ़ेगा तो उसके अंदर भी उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। फंड तो बाद में आ गया बहुत सारा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जब शुरुआत की तब हमें थोड़ा सा फील हुआ था कि इसमें हमें खुद के एफर्ट होंगे तभी ये हो पाएगा। तो होता है ना कि जैसे आप वो चीज़ सोच लो ना तो ऊपर वाला भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग में दे देता है। जब आपके अंदर वो आ जाती है ना शक्ति की करना है, जब करना है तो फिर वो हो ही जाता है जी। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है। तो जो ये हमारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰਵਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। हर शुक्रवार डेंगू त्योहार। उनका आज की डेट में इसके अच्छे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के प्रोजेक्ट को, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। मेरा मेन मकसद था साइंस की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो बच्चे के अंदर वो साइंस की अंडरस्टैंडिंग हमें उसके एग्जाम में दिखती थी, तो इससे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि जो हमारा मेन मकसद था कि अंडरस्टैंडिंग करवाना वो पूरा हो रहा था। खुशी हुई कि डिपार्टमेंट ने इस काम को सराहा और दिल्ली तक मेरा नाम भेजा। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਿਨ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 7 ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2012 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਾਰਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 2000 ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ 2012 'ਚ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 2012 ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत धन्यवाद सर जी। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 2012 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 2012 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, क्यों आई, कि मतलब कि सोच के तुसी ये शुरू किया? सर एक्चुअली मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ हिमाचल से। तो वहाँ पे जब मैं भी खुद पढ़ता था 8th 9th में तो हम भी थोड़ा थोड़ा डरते थे मैथ साइंस से।
तो चलो हमारे साथ जो हुआ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि बच्चों में थोड़ा तो फ़ियर रहता है। जब चंडीगढ़ के अंदर हम आए तो यहाँ पे नो डाउट हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत सारे हमारे यहाँ पे बच्चे बाहर कई स्टेटों से आते हैं पढ़ने। तो थोड़ा-सा ये था कि बच्चे जो ज़्यादा थे वो स्लम एरिया से थे। अब घर पे तो इनको पूरी तरह ध्यान दिया नहीं जाता। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैंने महसूस किया कि बच्चे थोड़ा-सा ना इसमें घबराते हैं और इंटरेस्ट नहीं बना पाते। तो मुझे ये था कि अगर हम मैथ और साइंस को किताबों से बाहर ले आएँ, किताबों से बाहर का मतलब कि क्लासरूम से हम बाहर ले आएँ कि पार्क के अंदर या ग्राउंड के अंदर, तो सो दैट कि बच्चे खेलते-खेलते या रिसेस टाइम है, फ्री पीरियड में, गेम पीरियड के अंदर, जब बच्चा बाहर उनके साथ मिक्स अप होगा, तो बच्चे में एक क्यूरियोसिटी सी डेवलप होती है कि ये कैसे हो रही है कई चीज़ें। जैसे मैं अभी आपको बताया था वो साइक्लोइडल पाथ, कि बच्चा तो पहले इमेजिन करता है जी वो सीधा शॉर्टकट रास्ता वहाँ पे बॉल पहले पहुँचेगी। बट जब वो करके देखता है तो उसको हैरानगी होती है। हैरानगी मीन कि उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। जब बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उसके बाद आप जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो बच्चा लाइफ टाइम भूलेगा नहीं उस चीज़ को। तो यही मेन मकसद था कि इस जो साइंस मैथ है इनको हम बाहर लेके आएँ और बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेरा एजेंडा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर और साथ में इंटीग्रेटेड टीचिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि जैसे अदर सब्जेक्ट के साथ इसको कैसे कोरिलेट करना है। जैसे कि हमारे म्यूजिकल साउंड है, डिफरेंट साउंड है, ये चीज़ जैसे म्यूजिक से रिलेट करती हैं। तो वहाँ पे हम म्यूजिक टीचर को साथ में लेके बच्चों को एक इंटीग्रेटेड टीचिंग का फ़ील करवाते हैं। ऐसे ही हम आर्ट के साथ जोड़ते हैं क्योंकि बच्चे का जिस फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो कोशिश रहती है कि उसी सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए सो दैट बच्चा जिस फ़ील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसके साथ-साथ मैथ साइंस को जब पढ़ेगा, तो उसके अंदर भी उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमने चंडीगढ़ में ये 53 के स्कूल में 2012 में शुरुआत की थी और ये शुरुआत में हमने बेस्ट से स्टार्ट किया था क्योंकि शुरू में कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तो उन चैलेंजेस के लिए हमने बहुत कुछ एफ़र्ट भी किए। तो खुद का ही एक हमने स्टार्टिंग में वेल्डिंग सेट परचेज़ किया, थोड़े बैकग्राउंड ऐसे कि हमें भी खुद थोड़ा बहुत काम आता फंड की कमी जो है नजर। शुरू चलो ऐसा होता है कि फंड तो बाद में आ गया बहुत सारा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जब शुरुआत थी तब हमें थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि इसमें हमें खुद के एफ़र्ट होंगे तभी ये हो पाएगा। तो वो होता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ सोच लो ना तो ऊपर वाला भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग में दे देता है आइडिया। जब आपके अंदर वो आ जाती है ना इच्छा शक्ति कि करना बिल्कुल है, बिल्कुल। जब करना है तो फिर वो हो ही जाता है जी। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है। तो हमने इसको करके दिखाया और आज की डेट में चंडीगढ़ के लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और अदर स्टेट के अंदर भी ये चल रहा है। और इसको जो ये हमारा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट स्कूल का, आज की डेट में इसके अच्छे-अच्छे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के प्रोजेक्ट को, तो ये एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। संजय कुमार जी, जब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको महसूस हुआ भी ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ बिल्कुल। ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ नहीं, ਹੋਰ भी कई दिक्कतें आईयां होंगी। बिल्कुल सर, कई दिक्कतें आई थी शुरू में कि हमें स्पेस भी चाहिए स्कूल्स के अंदर। तो हमें ये था कि स्कूल के अंदर स्पेस भी इस तरीके से क्रिएट किया जाए कि जहाँ पे बच्चा ज़्यादातर उसकी मूवमेंट होती है, सो दैट कि बच्चा उन चीज़ों को देखे और साथ में सीखे भी। और शुरुआत के अंदर हमने ये चीज़ें जो सारी की हैं, क्योंकि नया बनाने में जाते तो बहुत सारा फंड्स चाहिए था और नई कई अब हमने क्या किया कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके या साथ में हमारे जहाँ स्कूल था नियर बाई होता है हर जगह कबाड़ की दुकानें, तो वहाँ पे हमने विजिट किया तो कई चीज़ें हमें दिखी जिनसे कि बहुत सारे कई कंसेप्ट क्लियर हो सकते थे। तो हम उनको अपने स्कूल में लेके आए, जीरो लगभग मैं ऑलमोस्ट कबाड़ से शुरुआत की। कबाड़ से शुरुआत की थी और उनको हमने स्कूल्स के अंदर अब जब डिस्प्ले किया तो नो डाउट कि हमें लगा कि ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो और आज की डेट में जब शुरुआत की थी तो 10 टू 12 कंसेप्ट हमने किए थे स्टार्टिंग में, बट आज की डेट में ये 60 टू 70 कंसेप्ट जो कि 6 टू 10th क्लास के मैक्सिमम साइंस के कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो ये तो हो गया साइंस का, मैथ का कैसे शुरुआत की? मैथ में भी बच्चों को फेयर रहता था। ये साइंस के बाद हमने 53 में शुरुआत की थी उसकी भी, कि हमें लगा कि मैथ को भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अगर ऐसा कुछ किया जाए। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई कि मैथ के अंदर स्कोप थोड़ा कम होता है। तो फिर भी हमने कई चीज़ें जो हमें दिखी, वो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 5 टू 6 कंसेप्ट वहाँ पे किए थे। उसके बाद मैथ कंसेप्ट को भी एप्रिशिएट किया गया। तो ये भी आज की डेट में चंडीगढ़ के बहुत सारे स्कूलों में कई टीचर कर रहे हैं और खुशी होती है
कि अब ऑलमोस्ट चंडीगढ़ में ये चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही हैं और इनके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। अरे सर, सरकार ने कब रिकॉग्नाइज किया? आपने ठीक है एफर्ट्स कर लिए, प्रिंसिपल ने आपका साथ दिया, स्टाफ ने आपका साथ दिया, आपको जगह भी मिल गई, आपने 53 के स्कूल में कर भी दिया। उसके बाद सरकार ने कब आपको रिकॉग्नाइज किया भी हाँ यार ये चीज़ कंसेप्ट जड़ा बहुत अच्छा है, इनू ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ करना चाहिए? एक्चुअल में जब हमने ये वहाँ पे किया तो हमारे कई हायर ऑफिशियल जो क्योंकि नया स्कूल था, स्मार्ट स्कूल था चंडीगढ़ का पहला, तो वहाँ पे हायर ऑफिशियल विजिट करने आते थे। तो जब उन्होंने ये चीज़ें देखी वहाँ पे तो उनको अच्छी लगी। हमारे उस टाइम के प्रेजेंट डीपीआई जी जो बादू जी, उन्होंने उनको कंसेप्ट अच्छा लगा। एडवाइज़र सर ने विजिट किया, इवन कि गवर्नर सर ने भी उस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नर सर थे शिवराज पाटिल जी, उन्होंने भी विजिट किया। तो ये कंसेप्ट नो डाउट उनको अच्छा लगा और एक होता है कि ऊपर वाले का वो कि बाय चांस वो आए और अच्छा लगा और ये चीज़ फैलती गई। अच्छा, बच्चों के रिजल्ट में कितना फर्क आया जब ये आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की? रिजल्ट में क्या चेंज आया? जब बच्चों के इंटरेस्ट में क्या चेंज आया? सर जब हम पहले एग्ज़ाम लेते थे जो बुकिश नॉलेज के हिसाब से तो बच्चा होता है ना क्राइम ज़्यादा करता है, रटता ज़्यादा है। तो रटी हुई चीज़ जो लिखता है तो उसमें कई बच्चा लिख नहीं पाता आगे की लाइन पीछे, पीछे की हाँ। लाइन आगे, वो सीक्वेंस बन नहीं पाती थी। तो जब बच्चा ऐसे खुद एक्सप्लेन कर रहा है तो बच्चा अपनी लैंग्वेज के अंदर जब लिखता था ना कि जैसे ये बॉल पहले पहुँच गई टेढ़े रास्ते वाले, बेशक टेढ़ा ही लिख दिया उसने, कर्व्ड नहीं लिख पाया, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग तो है ना। वो टीचर को पता है कि उसको थोड़ी-सी अगर किसी लैंग्वेज में कमी है तो वो तो इम्प्रूव हो सकती है। बट जो मेरा मेन मकसद था साइंस की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो बच्चे के अंदर वो साइंस की अंडरस्टैंडिंग हमें उसके एग्ज़ाम में दिखती थी। तो इससे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि जो हमारा मेन मकसद था कि अंडरस्टैंडिंग करवाना वो पूरा हो रहा था। अच्छा, चंडीगढ़ के बाद पंजाब हरियाणा ने पंजाब हिमाचल सरकार ने भी आपको रिकॉग्नाइज किया। अब पंजाब हिमाचल के स्कूलों में भी जड़ा एक कंसेप्ट जड़ा वो है। अच्छा, राष्ट्रपति तक जड़ी ये गल या राष्ट्रपति दे अवार्ड तक ये गल किद्दां पहुंची? सर इसकी प्रोजेक्ट को देखते हुए जो हमारे अरबिंदो सोसाइटी है एक दिल्ली से, वो जब हमारे यहाँ चंडीगढ़ एम्स के साथ काम भी करते हैं बहुत सारा, उन्होंने देखा भी, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो उन्होंने 2019 में मुझे एक नेशनल अवार्ड के लिए रिकॉग्नाइज़ किया था, जो कि हमें एमएचआरडी मिनिस्टर से एट प्रेजेंट जो थे पोखरियाल जी, उनसे मिला था। तो जब वहाँ पे गया तो एक नेशनल लेवल पे जब कोई चीज़ जाती है, तो वहाँ पे आज काफ़ी स्टेट के लोग आए होते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट की, ठीक है? उसके बाद जब चीज़ यूट्यूब चैनल पे जाती है एमएचआरडी के बाद, तो नेचुरली वो चीज़, वो मैसेज था बड़ी जल्दी से फैला और ये भी हमें इसी साल मैंने ये अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, जो प्रेजेंट अवार्ड है। तो बहुत खुशी हुई कि डिपार्टमेंट ने इस काम को सराहा और दिल्ली तक मेरा नाम भेजा। अच्छा सर, मतलब कि लास्ट मैं साइंस मैं अपने स्कूल च साइंस लैब इस तरह की बनाना चाहना या मैथ की बनाना चाहना, तो किन्ने क दा ये प्रोजेक्ट हैगा और किन्नी की जगह जड़ी है रिक्वायरमेंट हैगी है? ऐसे है कि स्पेस तो कोई बात नहीं, स्पेस जितना मर्जी है मैनेज हो जाता है। रही बात बजट की, तो बजट ऐसे होता है कि आपके अपने एफर्ट्स के ऊपर है। अगर तो आप सारा कुछ रेडीमेड लेना चाहते हैं तो ये 5-6 लाख तक भी चला जाता है। ठीक है जी, बहुत नॉर्मल है इतना खर्चा तो। लेकिन अगर टीचर इन्वॉल्व हो तो ये खर्चा कम होते अगर खुद भी ना करें तब भी 2 ढाई 3 लाख तक हो जाता है, 3 लाख तक। लेकिन अगर टीचर के अपने एफर्ट्स रहें और बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और जैसे मैं वेस्ट का किया था उस टाइम, तो ये मतलब 50-60 लाख के अंदर बन सकता है। वो बड़ी मैं 50-60 हज़ार के अंदर 1 लाख मैक्सिमम लगा लो आप, 1 लाख कि साथ में टीचर इन्वॉल्व हो, स्कूल इन्वॉल्व हो फुली, तो 1 लाख के नीचे बन सकता है। अच्छा सर, मतलब कि ये तो होगी बजट की बात। अच्छा, बच्चों ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵमेंट नजर आई अगर परसेंटेज ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾए? आपको जैसे कि बता रहा हूँ कि जो बच्चे पहले लिखते थे, अब उसमें हम मार्क्स तो कट करेंगे बच्चे, हाँ। तो जो पास स्कोरिंग बच्चे थे या जो बिल्कुल वीक थे, तो वो भी कम से कम इतना स्कोर कर लेते कि पास तो वो हो ही जाते हैं। तो नो डाउट कि मुझे लगता है कि ज़्यादा तो मैथ साइंस के अंदर मेनली कम से कम 40 to 50%, मतलब 40% तो अप हुआ है रिजल्ट, ऐसा नहीं है। मतलब 40% इंक्रीज है सिर्फ लाख रुपया खर्च करके आप स्कूल दा। साइंस के अंदर अगर इन चीज़ों को आप इस तरीके से करवाते हो तो बच्चा 100% करेगा और रिजल्ट आपका 100% आएगा। अच्छा, बच्चों को क्या मतलब कि सानू पीरियड च नीचे ले आना पड़ेगा या जरूरत ही नहीं है, सानू उन्हां च पार्क च ले आने की लोड़ नहीं पैंदी या की करूं? टीचर की गाइडेंस के साथ बच्चा अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन में आ जाता है सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि आप रोज ही लेके आना है। जब गेम पीरियड है या आपका कोई रिसेस का टाइम है या जब भी फ्री टाइम मिलता है, जिस दिन पीरियड कोई टीचर नहीं आया तो उस दिन आप उसको पार्क में ले आइए, बच्चों के साथ उसको थोड़ा थोड़ा गाइड करिए, आप गाइड का काम करिए, बच्चे खुद सीखेंगे। अच्छा, आप ना सर वो बॉल वाला दिखा रहे ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ये सर साइक्लॉइडल पाथ है।
साइक्लोइड का ये तो ये हो गया कर्व्ड पाथ, जिसको हम बोले कि टेढ़ा रास्ता है, ठीक। वो आपका सीधा रास्ता है। ठीक है, जब यहाँ से हम 2 बॉल्स इकट्ठी छोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, जब उनको हम खड़ा करते हैं, पहले हम ये पूछते हैं कि बच्चे कौन सी बॉल पहले हिट करेगी। हाँ। तो नेचुरली है कि जैसे कि आपसे पूछा जाए, तो आई थिंक आप ये देखोगे शॉर्ट पाथ है, तो हाँ, वो वाली बिल्कुल बॉल short पहले है, है ना, उसका, वो पहुँचनी length चाहिए। कम है। हाँ, लेंथ कम है। लेकिन होता है क्या कि जब हम करके दिखाते हैं, तो बच्चे को वो एक्सपेक्टेशन से उल्टा रिजल्ट मिलता है। हाँ। तो पहले एकदम से उसके माइंड में स्ट्राइक करता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ बेटा ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए अब ग्रेविटी का इफेक्ट आने से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो बॉल पहले पहुंच गई। अब जब बच्चे ने करके देखा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बच्चा हो जो फिर वो कभी भूलेगा। तो वो एक होता है ना कि एक्सपीरियंस कर लेता बच्चा कि कौन सी चीज़ कैसी हो रही है। तो यही ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ Main- ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। उसके बाद सर मेरा जब मैं स्कूल में आया था, तो मैंने नो डाउट वहाँ पे हमें एक मौका मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से कुछ यहाँ करने का। तो हमारे एक सीनियर टीचर थे ओम प्रकाश जी, उनकी बहुत सारी उन्होंने हमारी हेल्प की, क्योंकि बंदा सीखता तो अपने बड़ों से ही है। तो हमने एक हर्बेरियम म्यूजियम तैयार किया कि बच्चों को ना थोड़ा सा ये था कि एनवायरनमेंट के प्रति भी अट्रैक्ट जोड़ा जाए एनवायरनमेंट से, कि कैसे हमने नेचर को सेव करना है। तो उसके लिए हमने, और एक जो कोरोना टाइम था, उस टाइम में हमने देखा है कि आयुर्वेद की बहुत ज़रूरत पड़ी है, और एलोपैथी के कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट रहते हैं। हाँ। तो हम नॉर्मली सर्दी जुकाम हो तब भी पैरासीटामोल दे देते हैं या कुछ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम पेशेंस नहीं है, तो हमने क्या किया कि जो हमारे किचन के अंदर कई चीज़ें ऐसी थी जिनसे हम मतलब एक प्रिकॉशन के तौर पे उनको यूज़ कर सकते थे कि शायद उससे ठीक हो सकता है। तो एलोपैथी के बाद की बात है, तो हमने एक हर्बेरियम म्यूजियम तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम लगभग 130 या 150 के अराउंड हर्बल प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा है, और उसके ऊपर लेबलिंग की है, उसका नाम, बोटेनिकल नेम और उसके यूजेस। बच्चों को हम विजिट करवाते हैं, उनके पेरेंट्स को भी विजिट करवाते हैं, जो भी कोई बाहर से आते हैं, टीचर कई बहुत सारे ऑफिशियल विजिट करते हैं। तो एक जब बच्चा देखता है कि अच्छा मेरे किचन के अंदर रखा था ये डिब्बी, और उसको पता ही नहीं उसके बेनिफिट क्या है। बिल्कुल। तो ऐसे ही कई हर्बल मेडिसिन अंदर रखी हुई हैं। साथ के साथ फिर मुझे था कि बच्चों को प्लांट के साथ भी जोड़ा जाए। हाँ। तो मैंने फिर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि मुझे था कि बच्चे जैसे समर वेकेशन होती हैं, कोई चंडीगढ़ से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, यूपी, बिहार, अदर स्टेट से बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो जो आपके एरिया में कोई बेस्ट प्लांट है जिसके बहुत सारे मेडिसिन बेनिफिट है, तो उसका एक प्लांट का पत्ता, लीफ, उसका पत्ता ले आइए, और उसके बच्चों को इन्वॉल्व कर हमने उसके फिर हर्बेरियम तैयार किया। हर्बेरियम का मतलब होता है कि उस बच्चे को पत्ते को हमने मॉइस्चर को बाहर निकाल दिया, उसको लैमिनेट करके हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया, और उसके ऊपर बच्चे ने खुद लिखा अब उसका नाम, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट। जब बच्चे ने खुद किया, तो बच्चे को तो वो प्लांट पूरी उम्र याद रहेगा कि भाई ये प्लांट इसमें यहाँ यूज़ होता है, और वो औरों को भी बताएगा। तो ये नेचर से कनेक्ट करने की ये भी इनिशिएटिव था, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर ऊपर लेके चलता हूँ, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसके बाद मेरा एक और कंसेप्ट था कि साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अगर हम वेरियस जो हमारे हायर साइंटिस्ट होते हैं, है ना, चलो हम भी उनके आइडियल हैं, बट जो साइंटिस्ट वो हमारे आइडियल हैं। तो मैंने CSI जो कि एक लैब है CSIR सेक्टर 30 में, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट किया। 53 में था तब भी गया, अपने स्कूल को उनके थ्रू अडॉप्ट कराया। अब जब यहाँ आए तो मैंने इसको भी अडॉप्ट करवाया है। उनके साइंटिस्ट टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में विजिट करते हैं, बच्चों को लेक्चर प्लस ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हम अपनी लैब के अंदर नहीं कर सकते, वो बच्चों को करके दिखाते हैं। और इंटरेक्शन प्रोग्राम के अंडर जो जिज्ञासा प्रोग्राम है, उसके अंडर हम बच्चों को उनकी लैब में विजिट करवाते हैं। तो बच्चे का सारा कुछ वो साइंस में ना, एक चाहता हूँ कि हर बच्चा साइंस को पढ़े और समझे, और उसको लाइफ में यूज़ भी करे। फिर एक और कंसेप्ट रिसेंटली मैंने एक और किया कि वेस्ट को, कि जो ये तो चीज़ें हम बन ही रही थी, कई कुछ वेस्ट ऐसा होता है उसमें पता नहीं चलता यार क्या करें। तो बहुत सारे वेस्ट ऐसे था कि जिसका हम डेकोरेटिव आइटम बनाने में यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा बाहर एक जैसे हमने बिन चाय बना रखा है, जो मुझे लगा कि उन पाइप का कुछ भी नहीं बन सकता, तो मैंने बिन चाय बना दिया, डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ हो रहा है। सेकंड थिंग, जैसे मेरे घर में एक पर्सनल एग्जांपल है, तो मेरी बाइक थी बहुत पुरानी, पहली बाइक थी, पुरानी होगी 15 साल हो गए, तो वेस्ट हो गई थी। तो जब वो वेस्ट हो गई तो क्वाड का ही काम था, लेकिन घर वाले बेचने नहीं देते थे कि पहली बाइक है इसको बेचने, इसको ऐसे रखना संभाल के, हमारे यहाँ कहा जाता है। मैं क्या फिर इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ये जिंदा भी रहे और काम भी आए कहीं। तो फिर मैंने उसके पार्ट सारे खुलवाए और अपनी गाड़ी में रख के यहाँ ले आया स्कूल में। उस टाइम मैंने सोचा नहीं था क्या करूँगा, लेकिन मैं क्या वहाँ जाके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने किसी बेल्ट को साथ में लेके उसका एक ह्यूमन स्केलेटन तैयार किया, कि जो साइंस लैब में स्केलेटन होते हैं, कि मुझे लगा इसकी थोड़ी डेकोरेटिव पर्पज से रखेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद जो हमारे कोई हायर पोस्टेड जैसे रविंद्र कौर मैम आए, उन्होंने बोला इसको वर्किंग करो। हाँ। तो मुझे लगा हाँ सच में अगर वर्किंग करें तो बच्चों के कई साइंस की कंसेप्ट के लिए ऐसे जॉइंट होते हैं हमारे, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इन जॉइंट्स को बच्चा जब खुद रोबोट वो मतलब फील करेगा ऐसे बाजू, तो उसको हम बता सकते हैं भाई देखो बेटा हिंज, हिंज क्या होता है, जो ये डोर लगा ना इसका कब्जा होता है, जो इसको हिंज बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पे स्पेशल वैसा ही कब्जा ही लगाया
मैंने वैसा नहीं कोई बैरिंग लगाए, सिंपल कब्जा लगाया, जो भी वाड़ का बेस्ट बड़े होते हैं, कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो कब्जे से वो मूव कर रहा है और बच्चों को बताते हैं हिंज होता है इसका नाम, और इसी को इसलिए कारण इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। फिर उसके अंदर हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ सेंसर वगैरह लगा के उसको एक रोबोटिक लुक देने की कोशिश की और वर्क भी की। और उसका थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे हमारा आगे नेक्स्ट जनरेशन ये आ रही है, 21st जनरेशन, रोबोटिक का ज़माना आ रहा है, कई ऑफ सर्जरी आपकी रोबोटिक से हो रही हैं, बट बच्चे ने रोबोट देखा नहीं होता। हाँ, नहीं देखा। तो हमें था कि बच्चों में फिल्मों में देखा होता है, तो हमें था कि छोटा सा एक ऐसे रोबोटिक कुछ में सेंसर फिट करके अगर बच्चों में वो वाली फीलिंग कराई जाए, तो उससे भी एक बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आने वाला टाइम कैसा है। तो ऐसे कुछ कई इनिशिएटिव हमारे ऐसे रहे हैं। भाई ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਪੇਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੋਬੋਟ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।